Good day, dear students. Now today we're going to start with our lecture number 18 of Total Quality Management. And like I've told you in our previous lecture that it's going to be a continuation of each lecture has a link with the other one. So in this, not only are we going to continue what we were studying in the previous lecture, but also we're going to be going over an overview of quality management also. So in the previous lecture we were talking about how financial conditions or budget issues are related to total quality management. So we were looking at the empowerment link between empowerment and delegated budgets. So if we look at that link, like I've told you in the previous lectures, कि financial budgetary issues को या financial management को ignore gurus ने तो बहुत किया, जो quality standards आपको बता रहे थे बुक्स के थ्रू, या दे वर सेटिंग द रूल्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट, लेकिन बेसिकली उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता बिकॉज इट प्लेज अ मेजर फैक्टर इन ऑल द रोल्स ऑफ इम्प्रूवमेंट. फिर वी वर ऑल्सो डिस्कसिंग के जो स्टाफ है या एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर एम्पावरमेंट मिल जाए, and if they it's not just about if they have the ability to use the resources available to them, and it's not just in the leadership hands, then maybe it creates more worker or employee motivation. So now continuation अगर हम उसकी अब देखें तो empowerment और delegated budgets के बीच में क्या लिंक है. Now self-managed teams have to work within an organization framework where the broad strategy and direction have already been set through leadership. So self-managed teams जो है ज़्यादातर उनको जो है एक ऐसे organizational framework के within काम करना पड़ता है जिनकी broad strategy जो है या उनका direction जो है वो already जो है वो leadership ने set कर दिया होता है. Now where the teams we would say have autonomy is over how to make the strategy work for their particular client group. So teams के पास लेकिन ये autonomy आ जाती है कि उनको एटलीस्ट ये पता लग जाता है कि उस strategy को जो leadership या direction उन्होंने दे दी है leadership ने, उस strategy को इन्होंने किस तरह implement करना है, ख़ास तौर पे अपने particularly अपने ही client group को कैसे उन्होंने उसको से relate करना है. Now however, to make empowerment work, teams have to be properly resourced. लेकिन empowerment का काम करने का point सिर्फ उस point पे आता है कि teams को जो है ना उनको पास resources proper तरीके से हों available. Now this simple but important fact lies at the heart of the empowerment equation. So ये simple fact है लेकिन एक important fact है कि empowerment equation में जो है ना it plays a major role. So although money let's say is often the one element not delegated to teams. So simple important fact तो इसमें है कि empowerment equation में ये चीज़ इसलिए आती है कि even though कि money जो है या पैसा जो है वो is often the one element जो teams को नहीं delegate किया जाता, but if you give them the empowerment then or provide them the resources, then they can perform better for that organization. Now when we look about the move from a centrally controlled organization to a flatter structure based on teamwork, teamwork is predicted on delegating sufficient resources to allow teams to make a range of significant decisions for themselves. So अगर हम ये देखें कि centrally controlled organizations जिस तरह चल रहे हैं उससे अगर हम move on करें और flatter structure based जो teamwork के base के ऊपर हैं उसको हम judge करें, and we could see that it's predicted on delegating sufficient resources ताकि teams को ये allow हो सके कि वो प्रॉपर सिग्निफिकेंट डिसीजंस कर सकें अपने लिए और खुद उस रेंज ऑफ डिसीजंस या फैसले जो उन्होंने करने हैं उन रिसोर्सेज को यूज़ करके दे कैन ट्राई टू इम्प्रूव their work or their quality standards. So delegating responsibility for resource control then would give teams the wherewithal to make and take those decisions. So
डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें ये चीज़ होगी कि हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर देते हैं या स्टेप में दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं, तो वो फिर रिसोर्स कंट्रोल जो है वो वी कैन गिव टीम्स, स्पेशली हम डेलीगेट कर देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ताकि टीम्स को जो है अपने फैसले करने में और उन पे एक्शन लेने में ज़्यादा आसानी हो, and it would be easier for them to do that. Now, without such freedom, it is difficult to make meaningful quality improvements in many situations. So, अगर ये freedom उनको नहीं दी जाए, ठीक है, तो फिर उनके लिए ऐसे important या फैक्टर्स जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की सिचुएशंस को इम्प्रूव कर दें या ऐसे फैक्टर्स जो है जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं, उन डिसीजंस को करने की अगर उनको आज़ादी उनको नहीं अगर दी जाती अपने डिसीजन मेकिंग में, तो फिर वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते जो मे बी अगर उनके पास फैसले करने की एबिलिटी हो और रिसोर्सेज हो तो फिर वो उस स्टैंडर्ड का क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स चला सकते हैं. सो इट वुड बी मोर मीनिंगफुल अगर उनको क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए कि उनको ये फ्रीडम दी जाए. So, when we can say that linking quality improvement to decentralized budgeting increases the freedom of action available to staff teams. So, एक चीज़ तो इससे ये क्लियर आ जाती है कि हम अगर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट सिस्टम को लिंक करते हैं बजट के डिसेंट्रलाइज करने से, तो उससे ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ एक्शन आएगा एंड वो फ्रीडम ऑफ एक्शन स्टाफ और उनकी टीम्स को अवेलेबल होगा एंड दे कैन देन वर्क बेटर in decentralizing the budgeting and improving quality at the same time. Now, the move has a parallel objective to improve institutional efficiency and to provide better value for money. So, इस move से at least जो है parallel objective इसका या main objective ये होगा कि institutional level पे efficiency में उसकी improvement आएगी और obviously वो they can provide better value for the money spent also. Now, empowerment is the opportunity given to teams to decide on their own priorities for action within a specified envelope of resources and within a framework agreed with the leadership of the institution. So empowerment जो है ऐसी opportunity है जो teams को दी जाती है ताकि वो अपने decisions कर सकें अपने own priorities पे और उस पे action ले सकें और फिर उसके बाद ऐसे specified देखिए specified envelope of resources and within a framework, ठीक है, जो agree उनके institution की leadership ने agree किया हो जिस पे, बट उनकी एग्रीमेंट के बावजूद जो है ना उस टीम के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि एम्पावरमेंट से वो डिसीजंस फिर भी लीडरशिप की एग्रीमेंट के साथ दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस, दे कैन डिस्कस इट एंड देन दे कैन इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स. नाउ इन एजुकेशन, such empowerment is often hampered by excessive controls over the command of resources, making it difficult for teams to use resources in an intelligent and creative fashion. So अगर हम educational point of view से देखें तो ऐसी empowerment जो है वो hinder करती है या उसको hamper कर दिया जाता है excessive control से, जो जिसमें यानी command of resources के ऊपर excessive control हो जाता है leadership का, जिससे teams के लिए resources इस्तेमाल करना और एक इंटेलिजेंट वे में या क्रिएटिव वे में या नई इनोवेटिव वे में उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके जब एक्सेसिव कंट्रोल आ जाएगा इन चीज़ों पे तो उनकी एम्पावरमेंट जो है वो फिर काम नहीं करेगी. नाउ मेकिंग इट द टीम अ कॉस्ट सेंटर इज द यूजफुल वे फॉरवर्ड. This allows the team to have greater control over curriculum design by giving them the resources to do the job. So, अगर आप एक टीम को empowerment देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक cost center जो है create कर दें उनके लिए, ठीक है. That could maybe be the answer for them to work more with more freedom. और ये उन teams को it will allow them to have greater control अपने curriculum design के ऊपर, and then also giving them the resources जिससे वो अपना काम proper तरीके से accomplish कर सके.
Now, it requires considerable trust on the part of managers as it passes power from the center to the operational unit. So, delegated budgets can aid quality improvement. If we consider it as an aid, we would say कि at least ये considerable trust मांगता है managers की side से कि जब वो power दे रहे हैं अपने staff या employees को, तो that means they have to have considerable trust on their workers. और क्योंकि ये पावर पास ऑन कर रहा है ना, सेंटर से लेके ऑपरेशनल यूनिट्स तक पावर दे रहा है. So what the senior managers retain is the key quality monitoring function. So senior managers के पास क्या चीज़ रह जाती है कि उनके पास monitoring function जो है key quality का, वो उनके हाथ में फिर भी रहता है. So they would oversee the results of the process, retention rates, success rates and customer satisfaction rather than controlling resources. So इस process में at least जो है वो senior managers जो है वो monitor कर सकते हैं, process के results को देख सकते हैं, ठीक है, retention of rates को देख सकते हैं, वो success rates judge कर सकते हैं and customer satisfaction भी judge कर सकते हैं, rather than कि ये जो है resources को control करने के. Now, in total quality management organizations, team have significant control over the inputs within the objectives laid down by the strategic plan. So while managers monitor the effectiveness of the outcomes of the process. So अगर हम total quality management के point of view से देखें तो total quality management जो है वो ऐसा है कि हम teams को यानी ऐसी organizations में जिसमें total quality management का system चल रहा है, वो उन teams को significant control दे देता है जो objectives हैं उनके inputs पे within the objectives laid down by the strategic plan, जो strategic plan के मुताबिक हुआ. While managers monitor the effectiveness of the outcomes of the process. और उस दौरान managers भी जो है वो staff के पास भी जो है वो ये control आ जाता है, ठीक है, कि inputs पे within the objectives जो laid down by the strategic plan. And while managers can also monitor कि उसके outcomes जो हैं उस process के वो कितने effective हुए हैं. So it gives both of those, the teams and the managers, an upper hand. Now there are a variety, अब हम अगर resource allocation models को judge करें तो there are a variety of ways in which financial delegation can be engineered. But the approach that is usually most effective is one that mirrors the way in which the institution itself is funded. So हम ये कह सकते हैं कि एक वैरायटी है, ठीक है, मुख्तलिफ वैरायटीज़ है तरीक़ों के जिनसे हम फाइनेंशियल डेलीगेशन को जो है जज कर सकते हैं. वी कैन सी दैट हाउ इट कैन बी इंजीनियर्ड, बट द अप्रोच जो होगी उसकी दैट इज़ यूजुअली मोस्ट इफेक्टिव इज़ दैट वन दैट मिरर्स द वे इन विच द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ इज़ फंडेड. सो फाइनेंशियल डेलीगेशन को इंजीनियर किया जा सकता है, बट एक अप्रोच जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव उस जगह पे आती है जो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है या उसको ही शो कर रही है, मिरर कर रही है जो इंस्टीट्यूशन ने जिस तरीके से अपने आप को फंड किया. Now, this enables staff to understand institutional finances as well as those of their own unit, and it helps them realize the environmental constraints under which it operates. So ये staff को enable करता है institutional finances, जो institution है उसके finances कैसे चल रहे हैं उसके ऊपर, and as well as कि उनके अपने जो है unit के साथ कैसे चल रहा है. And it also helps them to realize the environmental constraints जो हैं under which it operates. So जो environmental constraints है जिसके under वो काम कर रहे हैं उसको भी जज करने के लिए बड़ा helpful होता है. Now there is usually a top slicing of the income to cover such central overheads as senior and support staff costs, building maintenance and central services. So obviously staff को enable करता है ये understand करना institutional finances को, फिर अपना उनको समझ आता है कि वो अपने unit में कैसे वो उसको कर रहे हैं. They can help realize the environmental constraints हैं जो उनको operate करने से
रोक रही है या उनके हेल्प कर रही है दोनों सूरतों में। फिर यूजुअली टॉप स्लाइसिंग ऑफ द इनकम टू कवर सच सेंट्रल ओवरहेड्स, जो एटलीस्ट उनको ये भी पता लग जाता है कि ऐसा इनकम जो सेंट्रल ओवरहेड्स को कवर कर जाता है, जो सीनियर एंड सपोर्ट स्टाफ कॉस्ट हैं, ठीक है, फिर बिल्डिंग मेंटेनेंस के कॉस्ट उसको भी कवर करना, फिर सेंट्रल सर्विसेज की, तो ये सारी कॉस्ट अंडरस्टैंड करने में ये स्टाफ को बड़ा हेल्प आउट करता है। So when we talk about resource allocation models, फिर उसमें the remainder of the income is delegated on a formula derived from the methodology on which the institution is funded. और remainder उसका जो है वो उस चीज़ पे derive करता है कि जो methodology यूज़ की गई है जिससे institution अपने आप को fund कर रहा है या जहाँ से वो funding ले रहा है। Now, as most methodologies are based on the notion of funding following students, this principle is similarly applied to the funding of the teaching units. So अगर ज़्यादातर methodologies के हिसाब से अगर हम जज करें तो हम कहते हैं कि ज़्यादातर जो बेस्ड हैं वो इस नोशन पे बेस्ड हैं कि फंडिंग फॉलोइंग स्टूडेंट्स जो हैं उसकी बेस के ऊपर हैं। तो फिर ये जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल इज सिमिलरली मे बी फिर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं टू द फंडिंग ऑफ द टीचिंग यूनिट्स की फंडिंग की तरफ हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो funding of following students can be applied in acquiring better quality teachers or funding of teaching units. So on the income side, each unit is credited with a proportion of the funding it derives from the number of students it enrolls and teaches. So इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इनकम साइड से देखें तो हर यूनिट जो है उसको क्रेडिट किया जाता है एक पोर्शन जो है फंडिंग का उसके साथ, एंड इट डिराइव्स फ्रॉम द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इट एनरोल्स एंड टीचर्स। और ये चीज़ फैक्टर कहाँ से आती है कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने उन्होंने एनरोल किए हैं और जो टीच कर रहे हैं उस पे ये डिपेंड करता है। सो इन सम सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स this is adjusted for dropout and non-achievement. So अगर हम ये जज करें कि फंडिंग जो है वो डिराइव करती है फ्रॉम अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि उनकी कितनी इनरोलमेंट हुई है या उनके लेट्स से मोर सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स हैं जिससे उनका ड्रॉप आउट या नॉन अचीवमेंट लेवल भी जज किया जा सकता है। सो टीचिंग यूनिट्स ऑल्सो हैव टू मीट द टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ करिकुलम डिलीवरी। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि टीचिंग यूनिट्स जो हैं उन्होंने टोटल कॉस्ट भी जो है करिकुलम डिलीवरी की उसको भी कवर करना होता है, उसको भी मीट करना होता है इसमें। So the direct costs would include not just the cost of materials but also the total staffing costs involved in running programs. So इसकी direct cost जो है वो सिर्फ cost of materials नहीं होंगे, सिर्फ जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसकी cost नहीं होगी, but total staffing cost जो है staff की cost भी उसमें से included होगा जो एक पूरे program को run करने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, लेट्स से कि उसमें टीचर भी आ जाता है, उसमें सिर्फ मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, यानी वो चीज़ सिर्फ नहीं काउंट होगी, बट इवन द पीपल अटेंडिंग और द पीपल वर्किंग एट द सेम टाइम और वर्किंग टू हेल्प द टीचर्स इन करिकुलम डिलीवरी और इन अदर एक्टिविटीज़, तो ये सारी कॉस्ट उसमें शामिल हो जाती हैं। Now clearly the difference between the income and the staff costs is available for the teaching teams to spend as they think fit within the constraints of the financial regulations to enable the curriculum to be delivered effectively and efficiently. So clearly अगर हम ये चीज़ देखें कि जो डिफरेंस आ रहा है इनकम का और स्टाफ कॉस्ट के बीच में, यानी इनकम आप जितनी ले रहे हैं और जितना आप पूरे स्टाफ के ऊपर आपकी कॉस्ट आ रही है उसका जो बीच का डिफरेंस होगा, ये जो अमाउंट बचेगी, ठीक है, वो टीचिंग टीम्स जो है यूज़ कर सकते हैं उस तरीके से स्पेंड करने के लिए जिस पे वो बेहतर समझें, स्पेशली अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस के विदिन रह के, ताकि वो करिकुलम को उसकी डिलीवरी में ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंटली उसको परफॉर्म कर सकें। Now it is usual in institutions where such models are used for teaching units to develop an annual business plan that demonstrates how the curriculum is to be delivered within the resource envelope.
अगर आप यूजुअल इंस्टीट्यूशंस के मॉडल्स को जज करें तो आप ये जज कर सकते हैं कि टीचिंग यूनिट्स जो हैं, जो डेवलप हो चुके हैं एक एनुअल बिजनेस प्लान में, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि करिकुलम को इज टू बी डिलीवर्ड विद इन रिसोर्स एनवलप के, वो रिसोर्सेज के एनवलप के विद इन उसको डिलीवर करना है उन्होंने। यूजुअल इंस्टीट्यूशंस इन मॉडल्स के हिसाब से चलते हैं कि टीचिंग यूनिट्स इस तरीके से उनको डेवलप उनको किया जाए और बाकायदा उसके ऊपर एक प्लान बनता है, बिजनेस एनुअल प्लान बनता है। Now, when we talk about resource allocation models, now it is the responsibility, let's say, of each teaching unit to decide on the best way to deliver their programs within the available resource after the agreement of its plan with senior management. So, अगर हम overall ये judge करें तो हम ये देखेंगे कि ये responsibility जो है वो each teaching unit के ऊपर आती है कि वो ऐसा decision करें या ऐसे they have to decide the best way ताकि वो अपने program को deliver कर सकें उस तरह within the available resources के अवेलेबल जो उनको रिसोर्सेज हैं उसी के विद इन वो अपने प्रोग्राम्स को प्रॉपर तरीके से डिलीवर करें, स्पेशली आफ्टर द एग्रीमेंट जो उनका प्लान है सीनियर मैनेजमेंट के साथ उससे रिलेटेड जो है इट शुड बी available for them. So senior management make an agreement that certain clear outputs target focusing on quality, completion and achievement will be reached in return for this high degree of financial autonomy. So अगर senior management जो है they can make an agreement कि ऐसे क्लियर आउटपुट्स हैं, टारगेट्स हैं ऐसे, ठीक है, जो क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उनके कंप्लीशन और अचीवमेंट के ऊपर दे कुड बी रीच्ड जो है इन रिटर्न जो है ये हाई डिग्री या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आप जो दे रहे हैं उसके बदले में वो कंप्लीशन के टाइम पे वो अचीवमेंट जो है ना वो टारगेट्स पूरे अचीव हो सकें जो क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं स्पेशली। नाउ इट इज़ दीज आउटपुट टारगेट्स दैट सीनियर मैनेजमेंट आर कंसर्न्ड विद and they form the monitoring and accountability elements within the model. So ये output हैं targets के जो especially senior management जो है वो जिससे concern होती है and वो एक तरह से दे monitor करने का एक form create कर देते हैं जो accountability कह लो के elements का within the model, एक model के अंदर रहते हुए उसको accountable भी होते हैं, उसको monitor भी कर सकते हैं वो। So links to case loading, अगर हम case loading के हिसाब से links देखें तो under this model that we've made, once the plan has been agreed, it is the teaching unit's decision as to how much resource is put into direct teaching, the projects or tutorials, workshops, resource-based learning or any other approach to learning. So इस model के मुताबिक फिर वो एक दफ़ा plan जब बन जाता है तो फिर देखा जाता है कि किस चीज़ पे agree कर रहे हैं कि एक teaching unit की जो है ना decision क्या है कि कितने resources जो है वो डायरेक्ट टीचिंग में लगाने चाहिए, कितने रिसोर्सेज जो है वो प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल होने चाहिए, कितने रिसोर्सेज ट्यूटोरियल्स या वर्कशॉप्स या रिसोर्स बेस्ड लर्निंग की ऊपर हों और ख़ास तौर पे किसी भी अदर अप्रोच पे या लर्निंग पे बेस्ड हों। नाउ एकेडमिक यूनिट्स are given the freedom to adopt new and innovative approaches if they feel it is to the students' benefit. So academic units जो हैं उनको वो freedom दे दिया जाता है ताकि वो innovative या और नए approaches को adopt कर सकें and ताकि वो ये चीज़ they could feel free in it कि it is to the students' benefits और student उससे benefit हासिल कर रहा है या नहीं. So they can have that freedom of innovative approaches ताकि वो नई नई चीज़ें स्टूडेंट को उनकी लर्निंग प्रोसेस में लेके आ सकें. Now they can decide on the workloads of their staff and distribute work in ways that meet their curriculum goals rather than have staff workloads determined by senior management. So ये जो टीचिंग यूनिट क्रिएट हो जाती है टीम एक तरह से, so वो फिर स्टाफ का जो है ना वर्कलोड डिसाइड कर सकते हैं and they can distribute work इस तरीके से कि curriculum goals जो है वो मीट हो जाए, ठीक है, प्लस उनका जो है स्टाफ का जो वर्कलोड है वो उस चीज़ पर डिटरमिन कर देते हैं कि स्टाफ ने कितना वर्कलोड लेना है निस्बतन कि ये चीज़ सीनियर मैनेजमेंट करे. So then this is sometimes called
case loading and refers to the approach used by many groups of professional workers to base staff workloads on professional judgments, bounded only by the need to work within budgets. सो केस लोडिंग में अगर हम जज करते हैं, इसको केस लोडिंग हम क्यों कहते हैं कि ये चीज़ जब आपके आ जाएगा सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर लोड नहीं है, बट द टीचिंग यूनिट्स और द पीपल वर्किंग इन दैट टीम वुड डिसाइड द वर्कलोड ऑफ अ स्टाफ, देन दिस वुड बी कॉल्ड केस लोडिंग. और ये रेफर करती है उस अप्रोच को जब बहुत सारे ग्रुप जो हैं प्रोफेशनल वर्कर्स के, ठीक है, दे वुड बी बेसिंग स्टाफ वर्कलोड्स ऑन प्रोफेशनल जजमेंट्स. वो अपने प्रोफेशनल जजमेंट्स के मुताबिक स्टाफ लोड डिवाइड करते हैं, बाउंडेड ओनली बाय द नीड टू वर्क विद इन बजट, और सिर्फ बजट के विद इन काम करने के लिए ही बाउंड होते हैं. एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू सैलस इन 1995 and 96. Now, such an approach, when pursued in educational organizations, allows academic units to cope with the varied and diverse features of the modern curriculum in ways that would not be practicable if traditional and hierarchical methods of resource allocation were employed. सो ऐसे जो अप्रोचेस हैं, ठीक है, जब उनको हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से परस्यू करते हैं या एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनको परस्यू करते हैं, फिर वो अलाउ कर देती हैं एकेडमिक यूनिट्स को कि वो उस तरीके से कोप कर सकें ताकि वो वेरिड एंड डाइवर्स फीचर्स उसके जो है वो मॉडर्न करिकुलम के उसको वो डिज़ाइन कर सकें, एंड दैट दे वुड नॉट बी प्रैक्टिसेबल इफ ट्रेडिशनल हायरार्किकल मेथड्स वर ऑफ रिसर्च allocation were employed. एंड समटाइम्स ऐसी चीज़ें जो है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में वो परस्यू की जाती हैं और एकेडमिक यूनिट्स जो है ना ऐसी चीज़ों को कोप कर लेते हैं या ऐसी चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं जो मे बी ऐसे डाइवर्स फीचर्स हैं जो मॉडर्न करिकुलम से रिलेटेड है, जो मे बी अगर शायद हम ट्रेडिशनल तरीके से यह हायरार्किकल मेथड से हम उसको जज करें, यानी पुराने जो ब्यूरोक्रेटिक मेथड या ट्रेडिशनल मेथड से जो एक मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक उसको हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे. लेकिन रिसोर्स एलोकेशन जो है, लेट्स से कि मेथड्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन वर एम्प्लॉयड एट दैट पॉइंट, जो ट्रेडिशनल वे में है would render hindrance in it या मुश्किलात क्रिएट करे निस्बतन के जब वो अगर ऐसे ग्रुप्स जो हैं या एकेडमिक यूनिट्स जो है वो they can perform better with these new features. Now, this is a truly professional approach to curriculum management and one that allows the philosophy of total quality management to flourish. It returns the responsibility for the curriculum and student learning to staff teams. ये ट्रूली प्रोफेशनल अप्रोच हम इसको कह सकते हैं कि क्यूरिकुलम मैनेजमेंट की तरफ बड़ा प्रोफेशनल अप्रोच है और इससे जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो फिलॉसफी है वो ज़्यादा बेहतर फ्लरिश कर सकती है या ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है या इट कैन एक्सपैंड मोर एट अ बेटर रेट एंड इट रिटर्न्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्यूरिकुलम की वो स्टूडेंट लर्निंग की जो है और स्टूडेंट लर्निंग की और क्यूरिकुलम की वो स्टाफ टीम्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है उसकी. सो इन अ वे देन इट ओवरऑल वर्क्स बेटर इन द होल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम. सो अगर हम कंक्लूडिंग इश्यूज इस चीज़ के देखें अब, so clearly institutions that wish to go down this road will want to ask a range of questions about the suitability of such a delegated budgetary system for their own institutions. So कुछ institutions जो अगर मे बी शायद ये अप्रोच इस्तेमाल करना चाहें या इस अप्रोच के साथ जाना चाहें, उनके ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे कि इसकी सुटेबिलिटी क्या है और ऐसा इसकी यानी फीजिबिलिटी क्या है, क्या हम अगर स्टाफ को या हम ऐसे डेलीगेटेड बजटरी सिस्टम अगर हम बना देते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए कहाँ से ये फ़ायदेमंद होगा, कैसे नुकसान होगा. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूशंस के माइंड में आ जाते हैं बिकॉज of the range of funding mechanisms, it is only possible to deal with the generalities of the concept here. So the reason would be कि maybe जो है आप ये कह सकते हैं कि range of funding mechanisms जो हैं वो सिर्फ ऐसे हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू डील विद सिर्फ जनरलिटीज़ इस कॉन्सेप्ट के उसके साथ सिर्फ डील कर सकते हैं,
ठीक है. So maybe issues of how management information systems cope with this form of delegating budget, or about how inter-unit services is paid for, and what happens if teachers wish to reduce overall staffing or overspend their budgets, are key questions but are outside the scope of this book. So agar hum basically agar ye judge karna chahe, to obviously there are so many questions that an institution would be asking ke unka funding mechanisms की जो है ना रेंज क्या होगी, और जनरलिटीज तो राइट इस कॉन्सेप्ट की उनको वो बता सकते हैं, बट मे बी ऐसे इश्यूज हों उनको कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे कोप करेगा. फिर दूसरा ये कि ख़ासतौर पे इस डेलीगेटेड बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंटर यूनिट सर्विसिंग वो कैसे पे की जाएगी, एंड व्हाट हैपन्स अगर टीचर्स जो हैं वो ओवरऑल जो है स्टाफिंग रिड्यूस करना चाह रहे हो, या वो अपने बजट से ज़्यादा अगर स्पेंड कर देते हैं. सो दीज आर सो मेनी थिंग्स दैट ऑल कैंट बी डेल्ट विद इन वन सब्जेक्ट. बट let's, however, what is outlined here is the underlying philosophy of a resource allocation mechanism that is workable and which gives practical effect to the key notion of empowerment in total quality management. So क्योंकि even though हम ये सारी चीज़ें इसमें नहीं जज कर सकते, या इस सारी चीज़ों के आंसर्स में भी हम at this moment नहीं दे सकते, but at least ये उस चीज़ को आउटलाइन कर रहा है कि जो underlying philosophy है, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन मैकेनिज्म की, कि रिसोर्सेज एलोकेट करने की डिफरेंट उस पे लेवल्स पे, और कितना वर्कबल है ये, ठीक है, और कितना प्रैक्टिकल है, उसके की नोशंस जो हैं, क्योंकि इस एम्पावरमेंट से ये मिलते हैं. सो एम्पावरमेंट जो है, क्योंकि ऑलरेडी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक की फैक्टर है, सो ऑब्वियसली फिर ये चीज़ें भी उससे रिलेट हो जाती हैं. सो एम्पावरमेंट में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में एम्पावरमेंट किस तरीके से लाई जाए, तो उसका लिए ये एक सिस्टम या एक पार्ट आप कह सकते हैं, एक फिलॉसफी है, जिससे आप रिसोर्स एलोकेशन मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि कितना वर्केबल है. Now we move on from this onwards to professional managerial area in 1950s. So हम total quality management में अगर हम professional managerial era देखें, तो वो 1950s में start हुआ, early 1950s में. So now in our present age of market driven capitalism and futuristic knowledge driven economic markets, the decisions are made and the trends are set by professional managers. So आजकल के प्रेजेंट एज में, अब इवन दो के मैनेजेरियल एरा जो है वो 1950s में स्टार्ट हुआ, बट अब हम अगर प्रेजेंट एज में ये चीज़ देखें, तो जो हमारा मार्केट ड्रिवन कैपिटलिज्म है या हमारा फ्यूचरिस्टिक नॉलेज है, वो इकोनॉमिक मार्केट्स की बेस पे चल रहा है, और उन डिसीजंस जो अब लिए जा रहे हैं वो ज़्यादा नए ट्रेंड्स जो सेट हो रहे हैं उनके ऊपर, जो स्पेशली प्रोफेशनल मैनेजर सेट कर रहे हैं ट्रेंड्स, उनकी बेस के ऊपर फ्यूचरिस्टिक नॉलेज और मार्केट ड्रिवन जो है ना, हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिसीजंस ले सकते हैं. अब ना, अनलेस their predecessors, the captains of today's business, do not own their own companies. So अब जैसे पहले दौर में 1950s में managerial era में usually the managers were themselves the owners of their company. So आजकल अब obviously ऐसे जो है आजकल के वर्ल्ड में ये एक फैक्ट है कि many people are not the owners of their own businesses but they are working for different companies. So as working for them, उनका एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, जो एक बंदा मैनेजर एज अ मैनेजर वो अपने बिजनेस को खुद रन कर रहा है, उसका way of working would be a little different, and somebody who's employed to work for you, his concepts would be a little different. Now they must know the whole business but have control over only one small part. So डिफरेंस क्या आ जाता है कि जो पहले ज़माने में जो बिजनेसेस मैनेजर्स थे वो अपने बिजनेसेस के खुद मालिक थे, अब ऑब्वियसली वो एम्प्लॉय कर रहे हैं मैनेजर्स टू रन देयर बिजनेसेस. सो ये कॉन्सेप्ट जो है, पहले पूरे बिजनेस के ऊपर उनका कंट्रोल होता था जिसका ओनरशिप है. अब in this part and in this day or in this present age, now those managers only have control over a small part of the business.
So they must be product oriented, process conscious, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल एंड पब्लिक सेल्फ स्पिरिटेड. तो इनके अंदर अब जो क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं या ज़रूरी हैं वो ये हैं कि उनको प्रोडक्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, ठीक है, प्रोसेस कॉन्शियस होने चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल भी हों एंड पब्लिक स्पिरिटेड भी हों. सो दे मस्ट बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल. और हर लोगों को ये हर चीज़ होना चाहिए, येट स्टिल function as only one cog in the wheel. So they have to be everything to all people, but still जो है उनकी functioning जो है वो let's say कि as only one cog in the wheel, एक पहिए का सिर्फ एक हिस्सा की तरह जो है ना, एक स्पाइक की तरह वो काम कर रहे हैं, बट उनको फंक्शनल हर चीज़ में होना है, ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियली भी होना है, पब्लिक स्पिरिटेड भी होना है एंड प्रोसेस कॉन्शियस भी होना है. So if the history of management tells us anything, it is that no matter what happens, peace or war, prosperity or famine, this world will always be in need of good managers. The kind who can get society from where it is to where it wants to be. And can you be that one? Or can you be one of those managers? So अगर हम history के मुताबिक से देखें तो हिस्ट्री मैनेजमेंट जो है ना हमें हर चीज़ बता रही है, ठीक है, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी कंडीशन में, चाहे जंग चल रही है, चाहे पीस है, ठीक है, चाहे मे बी प्रॉस्पेरिटी है, पीपल आर अर्निंग मोर, और फेमेन है, मतलब कि नुकसान में जा रहा है या किसी उसमें बैकड्रॉप में जा रहा है कि कंट्री, या जो कुछ भी है, जिस भी कंडीशन है, उस कंडीशन में फिर भी हर सिचुएशन में हमें गुड मैनेजर्स की ज़रूरत है, अच्छे मैनेजर्स की ज़रूरत है. एंड ख़ास तौर पे वो मैनेजर्स की द काइंड हु कैन गेट सोसाइटी फ्रॉम वेयर इट इज़ टू वेयर इट वांट्स टू बी. ख़ास तौर पे उस टाइप के मैनेजर्स हमें अच्छे चाहिए जो सोसाइटी को जहाँ पे वो है उधर से जहाँ तक वो जाना चाहता है वहाँ तक उसको लेके जा सके, ठीक है. एंड देन द क्वेश्चन वुड बी, कुड यू बी वन ऑफ दोज managers or such a manager? So what is an organization? अब अगर हम ये जज करें कि एक organization क्या है, ठीक है, so what is an organization? An organization is an entity where two or more persons work together to achieve a goal or a common purpose. So एक organization को अगर हम overall जज करें कि एक organization क्या चीज़ है, तो एक organization एक entity है, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे काम करते हैं एक किसी ख़ास गोल को अचीव करने के लिए, किसी common purpose की. Now there are so many organizations around us. Daily we visit and see many organizations like hospitals, colleges, factories, farms and government offices. Mosques, church is also an example of an organization. People go there and say prayers. So हम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एंटिटी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो किसी एक कॉमन पर्पस के लिए वो एक गोल अचीव करने के लिए इकट्ठे काम कर रहे होते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशंस हम डेली लाइफ में बहुत सारे देखते हैं, लाइक हमें हॉस्पिटल्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चल रहा होता है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, फिर फैक्ट्रीज जो हैं, फिर फार्म्स जो हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज भी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है. इवन के चर्चेज एंड मस्जिदें भी जो है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर चल रही होती हैं, ठीक है. एंड जहाँ पे लोग सिर्फ अपनी प्रेयर्स के लिए जाते हैं, बट वो भी एक मैनेज तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से उनकी मैनेजमेंट भी चल रही होती है. So activities of praying are to achieve a certain goal. और इवन हम जो जाके मस्जिद में दुआ करेंगे या चर्च में प्रे करते हैं वो भी हम प्रे कर रहे होते हैं किसी सर्टन गोल या को अचीव करने के लिए. So similarly, any unit in which two or more persons are working together for some purpose is called an organization. So कोई भी ऐसा यूनिट जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो है काम कर रहे होंगे इकट्ठे किसी एक पर्पस के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, वो एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी. So what we would be calling an organization would be any place या कोई भी ऐसी फैक्टर जिसमें सब लोग इकट्ठे काम कर रहे हो किसी एक पर्पस के लिए. So now when we think of an organization as a unit of an organization, so unit of organization हम किस तरह काउंट कर सकते हैं कि उसमें three main things are the people, the purpose
and the process. So POLCA, polka, would be considered like, okay, if there is an organization, then there must be some people. अगर organization है, ठीक है, तो obviously उसमें लोग भी होना ज़रूरी है. They work as whole for a common purpose, so there must be a defined purpose. If an organization doesn't have any purpose, it will not survive for a long run. So हर organization अगर उनका कोई purpose नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा, तो वो obviously survive नहीं कर सकते. उनको survive करने के लिए उनको एक डिफाइंड पर्पस होना ज़रूरी है, और जब सारे लोग वो मिलके उस कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली पर्पस भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का. And then to achieve the purposes by using people, the processes are needed. ठीक है, without any process you cannot achieve any type of purpose or goal. So जहाँ लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उनको फिर एक पर्पस की ज़रूरत होती है, डिफाइंड पर्पस होना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, जो सारे उसके लिए मिलके काम कर रहे होते हैं, और फिर उस पर्पस को अचीव करने के लिए या हासिल करने के लिए प्रॉपर एक प्रोसेस बनाया जाता है, और वो प्रोसेस ज़रूरी होते हैं उन पर्पसेस को, मकसद को अचीव करने के लिए. अब वो जो प्रोसेस है, ठीक है, वो अगर उस प्रोसेस नहीं होगा कोई, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना पर्पस या अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगा विदाउट अ प्रॉपर प्रोसेस. Now, if we see in our daily life, we have some goals. अगर हम अपने डेली लाइफ के हिसाब से जज करें तो हमारे गोल्स होते हैं कुछ. Now, for achieving these goals, we use some processes. So, उन गोल्स को हम अचीव करने के लिए ऑब्वियसली कुछ प्रोसेसेस में से गुजरते हैं. So that process is also obvious एंड इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, और वो जो प्रोसेस है वो बहुत ऑब्वियस है और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है. नाउ द लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट रिक्वायर्स मेन पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट. और किसी भी प्रोसेस के लिए जो है ना एक ऑब्वियस है और इम्पोर्टेंट भी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रोसेस. और द लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उनकी रिक्वायरमेंट होगी कि उनके मेन जो है पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो क्रिएट हो और उसका एक प्रोसेस हो. सो दैट इज पोल्का, दैट इज POLCA. अब वो पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट जो पोल्का है वो क्या चीज़ है? उसमें आ जाती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड देन अश्योरेंस. सो पोल्का का वर्ड बन गया प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग PO, देन लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड अश्योरेंस. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उस प्रोसेस में अपने गोल्स को अचीव करना या सक्सेस की तरफ जाने के लिए इन चार चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है. प्लानिंग, क्योंकि इफ़ दे डोंट हैव अ प्लान देन दे कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए हर चीज़, ठीक है. लीडिंग यानी लीडरशिप उनकी अच्छी होनी चाहिए, कंट्रोलिंग हो. एंड अ मैनेजर मस्ट परफॉर्म ऑल दीज मैनेजमेंट फंक्शंस विद अश्योरेंस. और ये सारे फंक्शंस जो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग और अश्योरेंस जो है वो एक अश्योरेंस के साथ एक मैनेजर को जो है वो परफॉर्म करने, ये सारे मैनेजमेंट फंक्शंस. नाउ क्वालिटी एश्योरेंस अगर हम देखते हैं, सो क्वालिटी एश्योरेंस नाउ refers to any planned and systematic activity directed towards providing consumer with products, goods and services of appropriate, along with the confidence that products meet consumers requirements. तो अगर हम क्वालिटी एश्योरेंस देखें, तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो ऐसे प्लान की तरफ रेफर करता है और ऐसे सिस्टमैटिक एक्टिविटी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है जो डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग कंज्यूमर्स विथ प्रोडक्ट्स की तरफ, कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स या गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने की तरफ काम कर रहा होगा. एंड अब अप्रोप्रिएट और ख़ास पे अप्रोप्रिएट और प्रॉपर क्वालिटी की चीज़ें, अलॉन्ग विद द कॉन्फिडेंस दैट द प्रोडक्ट्स मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. और ये कॉन्फिडेंस भी उनमें होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है. So quality assurance, then usually associated with some form of measurement and inspection activity, has been an important aspect of production operations throughout history. So अगर हम quality assurance को फिर हम जज करें, so quality assurance जो है वो
हम कह सकते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस यूजुअली एसोसिएटेड विद सम फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, यानी क्वालिटी एश्योरेंस को हम किसी फॉर्म ऑफ मेजरमेंट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं या किसी इंस्पेक्शन एक्टिविटी के साथ, ठीक है, दैट कोई ऐसी इंस्पेक्शन एक्टिविटी दैट हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो प्रोडक्शन ऑपरेशंस का हिस्सा जो है रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री, उसको यानी फॉर्म ऑफ मेजरमेंट है उसका. So Egyptian wall paintings circa in 1450 BC show evidence of measurement and inspection. So अगर आप Egyptian wall paintings आप देखें 1450 BC से, ठीक है, तो वो कुछ evidence ऐसा बताते हैं जिसमें measurement and inspection का concept आता है. Now, quality assurance, when we're speaking about quality assurance, then stones for the pyramid were cut so precisely that even today it is impossible to put a knife blade between the blocks. So, अगर हम उस point of view से हम ये जज करें तो हम for example ये देख सकते हैं कि जो इजिप्ट के मिस्र में जो pyramids थे, ठीक है, उन पिरामिड्स में जो आप कंसिडर किए जाते हैं लाइक वन पार्ट ऑफ अ वेरी एंशिएंट हिस्ट्री, उन इजिप्शियन पिरामिड्स में वो इतने प्रिसाइज तरीके से उनके जो ब्लॉक्स या उनके पत्थर काटे गए थे पिरामिड्स को बिल्ड करने के लिए कि आज भी, आज के दौर में इतने साल गुजर जाने के बाद भी उन ब्लॉक्स या उन स्टोन्स के बीच में नाइफ का ब्लेड तक आप एंटर नहीं कर सकते, यानी इतनी प्रिसीजन के साथ वो चीज़ें बनी हैं. Now the Egyptian success was due to the consistent use of well-developed methods and procedures and precise measuring devices. और इजिप्शियंस की ये सक्सेस क्यों ऐसी थी कि उनके इतना परफेक्ट तरीके से या इतनी हाई क्वालिटी के उनके यानी वो पिरामिड्स बने कि वो था बिकॉज उनका वेल डेवलप्ड मेथड्स से उनके पास, ठीक है, और ऐसे प्रोसीजर्स और उन्होंने ख़ास प्रिसाइज यानी टू द पॉइंट मेजरिंग डिवाइसेस ऐसे यूज़ किए थे जिनकी बेस पे उनकी ये हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स या उनके एंड रिजल्ट जो है वो इतना सक्सेसफुल आया. सो क्वालिटी इज़ इन फैक्ट not just functional excellence of products or services, but it is about whole aspects of product characteristics. So, अगर हम पिरामिड्स में जज करें तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ओवरऑल पिरामिड की क्वालिटी अच्छी है, उसका यानी हम ये कह सकते हैं कि उसके एक एक पत्थर को इस क्वालिटी के तरीके से इतनी शेप और इतने लेवल के साथ काटा गया या बनाया गया कि उनकी जब वो उनको जोड़ा गया तो उनके बीच में इंसान नाइफ का ब्लेड तक नहीं डाल सकता. दैट मीन्स कि वो इतनी प्रिसीजन में, इतनी परफेक्शन में बने हैं. सो क्वालिटी जो है हम उस एग्जांपल से देख सकते हैं कि क्वालिटी सिर्फ फंक्शनल एक्सेलेंस का मतलब नहीं होता कि किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, बट पूरे एस्पेक्ट को देखता है कि प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसके अंदर हम क्वालिटी डिफाइन कर सकते हैं. Now, if we take quality assurance again, now take a high quality watch produced by company A, let's say, for example. So, no matter if the craftsmanship is exceptionally high, if the production cost and sales price are so high that nobody can afford to buy such watches, no one can claim that the watch quality is truly high. सो अगर हम सिर्फ फंक्शनल उसका पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम लेट्स से कि फॉर एग्जांपल हमने कोई कंपनी ए रखी है, ठीक है, लेट्स नॉट नेम इट, लेट्स जस्ट गिव इट एन सैम्पल नेम, यानी कि कंपनी ए हमने कह दिया उसको, हम कहते हैं कि वो वॉचेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, घड़ियां बना रहे हैं और बहुत हाई क्वालिटी की घड़ियां बना रहे हैं, लेकिन उनकी क्राफ्ट्समैनशिप या उनकी खूबसूरती या उनका बनना जो है वो बहुत एक्सेप्शनली हाई है, लेकिन अगर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट और उसकी सेल्स प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा हाई हो कि कोई उसको अफोर्ड ही ना कर सके, कोई खरीद ही ना सके उन घड़ियों को, तो फिर कौन क्लेम कर सकता है कि उस घड़ी को जो है ना वाकई ट्रूली वो हाई क्वालिटी की है, जब कोई उसको बाय ही नहीं कर सकेगा, परचेस ही नहीं कर सकेगा. सो इन अदर वर्ड्स, क्वालिटी एश्योरेंस इज नॉट जस्ट अबाउट फंक्शनल एक्सेलेंस बट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन. सो क्वालिटी एश्योरेंस हम कह सकते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो सिर्फ फंक्शनल एक्सेलेंस नहीं देख रहा कि एक क्राफ्ट्समैनशिप उसकी खूबसूरती कितनी है, कितनी परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, कितना ड्यूरेबल है, बट उसकी हम हर एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ जाती है, एंड रिजल्ट सेल प्राइसेस भी आ जाते हैं, एंड द ओवरऑल यानी एक पूरा उस
हर एस्पेक्ट को वो जज करता है. सो क्वालिटी एश्योरेंस वुड बी समथिंग कि सिर्फ एक चीज को नहीं बल्कि ओवरऑल एज अ होल उसको वो मेजर कर सकता है. Now, when a company, let's say, produces a product, its major tasks are to assure that its quality is beyond customer needs and that no defective units are delivered to customers. So, एक company जो है जब वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, सो हम कहेंगे कि उसके मेजर टास्क जो है वो ये है कि वो अश्योर कर सके कि क्वालिटी जो है वो उसके कस्टमर की नीड्स के बियॉन्ड है, ठीक है, एंड कोई भी ऐसे डिफेक्टिव यूनिट्स जो हैं वो कस्टमर्स को डिलीवर नहीं किए जा रहे. So this, however, does not mean that it is acceptable for a company to produce defective units as long as they are not delivered to customers. So इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर ये कहते हैं ना कि एक कंपनी जो है वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और उसका मेजर टास्क जो है क्वालिटी एश्योरेंस में ये देखना है कि उसके कस्टमर्स को कोई डिफेक्टिव आइटम्स या डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना जाए. तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि कंपनी सिर्फ डिफेक्टिव आइटम्स या प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स तक ना पहुंचाए. इसका मतलब ये भी होगा कि वो कंपनी डिफेक्टिव प्रोडक्ट या यूनिट बनाए ही ना, ठीक है, उसके प्रोडक्शन में ही डिफेक्ट नहीं होना चाहिए. सो वो एक्सेप्टेबल एक कंपनी के लिए ये चीज़ नहीं हो सकती, बट ये कंपनी के लिए होगा सिर्फ डिलीवर नहीं बट इवन इन देयर प्रोडक्शन कोई डिफेक्ट्स होने ही नहीं चाहिए. सो why do we say that? Because producing non-conforming articles will bring financial loss to the company. So क्योंकि अगर हम defective products बनाते रहे कंपनी, even though कि customers को नहीं पहुंच रहा, लेकिन कंपनी अगर defective चीज़ें बना रही है, articles बना रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर कंपनी की financial loss जाती है, ठीक है, they are losing financially. So in other words, हम ये कह सकते हैं कि if a company's products cannot be sold in the market, it will have to bear the entire cost of production. So एक दूसरे वर्ड्स में हम उसको ये कह सकते हैं कि एक कंपनी के अगर प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव है और मार्केट में बेचे ही नहीं जा सकते, तो फिर ऑब्वियसली वो सारी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंपनी के सर पे आ जाएगी एंड ऑब्वियसली फिर वो फाइनेंशियल लॉस में जाएंगे. Now, therefore, the fewer the non-conforming articles produced, the lower the production cost. So, thus the lower the their price. So, हम therefore हम ये कह सकते हैं कि जो अगर conforming articles जो हैं वो जो प्रोड्यूस किए जा रहे हो कम अगर, ठीक है, ऐसे डिफेक्टिव आर्टिकल्स या नॉन कन्फॉर्मिंग आर्टिकल्स अगर कम प्रोड्यूस होंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कॉस्ट भी लोअर होगी, ठीक है, एंड देन ओवरऑल प्राइस भी उस प्रोडक्ट की लो हो जाएगी क्योंकि उसमें डिफेक्टिव चीज़ें नहीं होंगी. सो इन दिस रिस्पेक्ट it is important that not only does the company not circulate defective products in the market, but also it does not manufacture such products in the first place. So इस रिस्पेक्ट में अगर हम ये देखते हैं तो हमारे लिए ये चीज़ अंडरस्टैंड करना इजी होगा कि एक कंपनी सिर्फ जो है ऐसी चीज़ें सर्कुलेट ना करे जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में सर्कुलेट सिर्फ ना करना उसका मकसद नहीं है, बल्कि शुरू में ही फर्स्ट प्लेस में ऐसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर ही नहीं करने चाहिए उसको. So quality assurance is to bridge gaps in the dispersion of quality, aiming to attain the expected value. So quality assurance हम कहते हैं कि हम gaps को bridge करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ताकि quality की dispersion या quality को हम disperse या divide कर सकते हैं stages में, ताकि हमारे aim जो है ना वो ये होगा कि हम expected value जो है वो हासिल कर सकें. Now if we look at let's say a quality assurance guide or a map or let's say this picture, then we would say that SL जो है वो specification lower limit होगी and SU would be specification upper limit, ठीक है. सो रिजेक्शन लेवल आप देख सकते हो, अप्रूवल एंड रिजेक्शन जो है किसी कॉस्ट का आप वो देख सकते हैं कि अगर वो अप एंड डाउन जा रहा है रिजेक्शन का, ठीक है, सो ऑब्वियसली फिर क्वालिटी एश्योरेंस जो है इज गोइंग इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस और उसके अप्रूवल लेवल भी अप एंड डाउन हो रहे हैं, रिजेक्शन भी फिर डाउन. और अगर हम स्पेसिफिकेशन अपर लिमिट के हिसाब से उसको देखें तो रिजेक्शन अप्रूवल और वो जो है क्वालिटी एश्योरेंस को चेक जो है दैट वुड ऑल बी गोइंग टुवर्ड्स द टारगेट एंड नॉट गोइंग आउटसाइड द टारगेट दैट वी वांट टू अचीव.
Now, if we look at quality assurance, now disparity is caused by defective units. So, to reduce the number of defective articles means to manage the disparity, according to Karatsu in 1995, he wrote on his page 38. So, disparity जो है वो डिफेक्टिव यूनिट्स की वजह से कॉज होती है. सो उसको अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं डिफेक्टिव आर्टिकल्स की क्वांटिटी को, तो हमें डिस्पैरिटी को मैनेज करना है. नाउ द कॉजेज ऑफ डिस्पैरिटी कैन बी फाउंड इन वेरियस फैक्टर्स सच एज रॉ मटेरियल्स, मशीनरी कंडीशंस एंड द वेदर. सो डिस्पैरिटीज वो फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से कोई ऐसी चीजें जिनमें जो है ना मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स इंक्लूडेड होंगे, मशीनरी के कंडीशंस होंगे या वेदर फैक्टर्स होंगे. ये ऐसे फैक्टर्स हैं डिस्पैरिटी के जो मे बी किसी प्रोडक्ट के या किसी आर्टिकल के डिफेक्टिव होने में असरअंदाज हो सकते हैं. सो अगर उनके रॉ मटेरियल्स अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, या उनकी मशीनरी में कोई फॉल्ट आ गया है, या कोई वेदर एस्पेक्ट से वो सूट नहीं कर रहे, तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये वेरियस ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो डिफेक्टिव आइटम्स को कॉज होने में की वजह बन सकते हैं. सो क्वालिटी एश्योरेंस डज नॉट नेसेसरली मीन द अचीवमेंट ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, बट नीदर डज इट मीन अचीविंग द मिनिमम क्वालिटी दैट वन कैन एक्सपेक्ट. सो क्वालिटी एश्योरेंस हम ये नहीं कह सकते कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो नेसेसरली उसका मतलब जो है हाईएस्ट क्वालिटी को अचीव करना है, बट इट नीदर उसका ये मतलब भी नहीं बनता कि आप जो है मिनिमम क्वालिटी जो है ना वो अचीव करें जो किसी एक की एक्सपेक्टेशन है उससे. ठीक है. सो अगर हाईएस्ट क्वालिटी नहीं कर सकते तो कम भी नहीं क्वालिटी एक्सपेक्ट करना चाहिए. सो क्वालिटी एश्योरेंस का मकसद है कि एटलीस्ट एक बैलेंस्ड उस पे हो. सो इट हैज टू बी वैल्यू फॉर मनी फॉर बोथ कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, where disparity suggests the ranges within the possible frequencies. So मनी, वैल्यू ऑफ मनी जो है ना वो होनी चाहिए कि जितना उस पर कॉस्ट आ रही है और कस्टमर को भी वो सफिशेंटली यानी इफेक्टिवली इजीली उसकी कॉस्ट पड़े, और प्रोड्यूसर जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसके भी कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए. सो देन वी वुड से दैट के फिर ये क्वालिटी एश्योरेंस प्रॉपर तरीके से काम कर रही होगी. So when we say that quality focus approach to management, अगर हम उसको जज करें, so हम एक उसमें कर सकते हैं कि there are really only 3 types of people. सिर्फ 3 किस्म के लोग हो सकते हैं. Those who make things happen, वो वाले लोग जो कुछ करने में हेल्प आउट करते हैं या चीज़ें चेंज करने में, which would make things happen, जो करते हैं काम. Those who watch things happen, वो वाले लोग जो सिर्फ देखते हैं कुछ होते हुए काम को. And those who say what happened, और ऐसे भी हैं लोग. So सिर्फ 3 किस्म के लोग हो सकते हैं. क्वालिटी अगर हम फोकस को देखें मैनेजमेंट की अप्रोच से, सो वो लोग जो काम कर रहे हैं, वो लोग जो काम होता हुआ देख रहे हैं, और वो लोग जो कह रहे हैं कि क्या हुआ, जो क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे. So people, the workers who are working and exactly implementing their work, people who are watching over them, जो उनको मॉनिटर कर रहे हैं या उनको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, और वो लोग जो आपसे सीनियर्स आपका रिजल्ट मांग रहे हैं. ठीक है. Now, when we talk about a quality focus approach to management, हम ये कहेंगे कि the total quality concept as an approach to doing business began to gain wide acceptance in the West in the late 1980s and early 1990s. So total quality का concept अगर हम देखें तो एक approach के point of view से, so business करना, ठीक है, approach to doing business, उसका मतलब जो है ना उसका होगा कि gain करना, wide acceptance gain करना, ठीक है, especially in the West. जो अर्ली 80s एंड 90s में ये चीज़ आनी शुरू हुई कि क्वालिटी, टोटल क्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो वेस्ट में जो है ना अंडरस्टैंड होना शुरू हुआ. बिफोर दैट दे रियली डिडंट पे अटेंशन टुवर्ड्स टोटल क्वालिटी. सो However, individual elements of the concept, such as the use of statistical data, teamwork, continual improvement,
customer satisfaction and employee involvement have been used by visionary organizations for years. So even though के ये concept जो अगर हम individual elements देखें concept के, तो total quality concept जो है as a whole जो है वो तो late 80s और 90s में West में जो है ना वो आया, और जापान में जो है ना वो early 40s and 50s में implement होना शुरू हुआ. But अगर हम individual elements उसके जज करें कि जिसमें हम देख सकते हैं सिर्फ statistical data देख सकते हैं, team work देख सकते हैं, या continual improvement का system, या customer satisfaction, ठीक है, या employee involvement कितनी है उसमें, तो फिर वो यानी काफ़ी अरसे से ऐसे organizations जिनका vision ज़्यादा broad है वो काफ़ी अरसे से इसको यूज़ कर रहे हैं. So it is the pulling together and coordinated use of these and other previously disparate elements that gave birth to the comprehensive concept known as total quality. So उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, and the use of these and other previously disparate elements, और उन इन सारे एलिमेंट्स, स्टैटिस्टिकल डेटा, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, ये सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करके इनको आपस में कोऑर्डिनेट करके फिर ये एलिमेंट्स की बेस पे जो है सेपरेटली तो ये ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रही थी, तो जब इनको सबको इकट्ठा किया गया, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया, तो फिर वहाँ से जो है वो टोटल क्वालिटी की चीज़ जो उसका कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट जो है उसका, वो उसने वहाँ से जो है ना बर्थ ली. एंड दैट्स हाउ टोटल क्वालिटी स्टार्टेड when it was a continuation of all of these aspects. Now if we speak about why focus on quality, तो फोकस के हम क्वालिटी के ऊपर फोकस क्यों करें? Now to understand total quality one must first understand quality. So टोटल क्वालिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले हम क्वालिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, क्वालिटी क्या है, ठीक है. सो कस्टमर्स ऑफ बिजनेसेस विल डिफाइन क्वालिटी वेरी क्लियरली as using specifications, standards and other measures. So अगर हम businesses के customers को देखें तो वो quality को बड़े clear तरीके से define कर सकते हैं, या तो specifications के ऊपर, standards के ऊपर, या फिर measures जो है उसकी base के ऊपर. Now this makes the point that quality can be defined and measured. So at least इससे ये चीज़ clear होती है कि quality को जो है ना define भी किया जा सकता है और measure भी किया जाता है. So although few consumers could define quality if asked, all know it when they see it. So even हम अगर ये देखेंगे कुछ consumers जो है वो quality को define करना उनके लिए may be मुश्किल होगा, लेकिन they can see it wherever they expect कि हाँ जी this product or this services has quality. Now this makes the critical point that quality is in the eye of the beholder. So इस point of view से हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह there is a saying या मुहावरा है कि beauty lies in the eye of the beholder, यानी देखने वाले की आंख में खूबसूरती है, उसी तरह से हम इसको इस point of view से critical point इसका ये बना सकते हैं कि quality is in the eye of the beholder, और quality जो है वो देखने वाले की आंख में है, ठीक है, वो अपनी ही नज़र से ही जज कर सकता है कि उसको quality नज़र आ रही है या नहीं किसी चीज़ में. So with the total quality approach customers ultimately define quality. So अगर हम total quality approach के हिसाब से देखें तो customers जो हैं वो ultimately वो quality को define कर सकते हैं. They can tell us what quality is. So people deal with the issue of quality continually in their daily lives. और लोग जो है वो quality के इश्यूज को कंटिन्यूअली जो है ना अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं या उनके साथ डील कर रहे होते हैं. नाउ वी कंसर्न आवरसेल्व्स विद क्वालिटी व्हेन ग्रोसरी शॉपिंग, ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट and making a major purchase such as an automobile, a home, television or a personal computer. So हम क्वालिटी इश्यूज तो हम डेली बेसिस पे हम क्वालिटी को जज कर रहे होते हैं. So हम अपने आप को कंसर्न कर सकते हैं क्वालिटी के साथ, खास तौर पे हम जब देखते हैं कि हमने क्वालिटी की चीज़ें जब परचेस करनी है, तो मे बी हम जब ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, सो एट दैट पॉइंट वी विल बी सर्चिंग फॉर क्वालिटी गुड्स, या फिर व्हेन वी आर ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट, वहाँ पे हमें देखना है कि उस रेस्टोरेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए या क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसका. देन खास तौर
पे जब हम when we are making major purchases, जब हम कोई मेजर परचेस कर रहे हो, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी खरीद रहे हैं या कोई घर खरीद रहे हैं, टेलीविज़न ले रहे हैं या कोई पर्सनल कंप्यूटर ले रहे हैं, तो उसमें हम फिर अपने आप को कंसर्न करते हैं क्वालिटी इश्यूज़ के साथ. सो perceived quality is a major factor by which people make distinctions in the marketplace. So जो एक कॉन्सेप्ट परसीव्ड क्वालिटी का है, क्वालिटी यानी अंडरस्टैंड करने का, वो एक मेजर फैक्टर है जिसकी बेस के ऊपर लोग जो है वो डिस्टिंक्शंस बना लेते हैं मार्केट प्लेस में. Now, whether we articulate them openly or keep them in the back of our minds, अब चाहे हम उसको ओपनली बयान कर दें, ठीक है, वर्ड्स में ले आए कि हमें ये क्वालिटी चाहिए, या फिर हम अपने माइंड में रखें. इन एनी केस हम जो है मेजर फैक्टर जो है वो मार्केट प्लेस में हम क्वालिटी जो है सर्चिंग वो हमारे दिमाग में होती है हर चीज़ में. नाउ वी ऑल अप्लाई अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया व्हेन मेकिंग अ परचेस, और हम जब भी कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं तो हम हमारे माइंड में या तो वर्बली या फिर माइंड में हमारे ऐसे क्राइटेरिया सेट होता है कि हमने इस तरीके की चीज़ लेनी है, इसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ये उसमें वो चीज़ें फंक्शंस होने चाहिए. So the extent to which a purchase meets these criteria determines its quality in our eyes. और जिस extent पे वो जो है या criteria को meet कर रहा है वो certain product या वो चीज़ जो भी हम ले रहे हैं, ठीक है, उससे हम define करते हैं कि वो कितनी quality का है. ठीक है, अगर वो सारी क्राइटेरिया पे पूरा उतरे तो हम कहेंगे बहुत टॉप क्वालिटी की चीज़ हमने ली है. सो क्वालिटी दैट मीन्स इज इन द इंडिविजुअल्स आईज. तो हर इंडिविजुअल की आई में बेसिकली क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है. हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक को क्वालिटी जज करना वो बड़ा डिफ़िकल्ट है. सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन कॉन्सेप्ट, अपना उनका माइंड है हर एक का कि क्वालिटी के स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए. सो डिफाइनिंग इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. So we will go on with continuing on why focus with quality in our next lecture, students. So this is all for today. So I hope you can understand the concept of the total quality management and why quality is important in every aspect. So thank you so much. We will continue with this in our next lecture. Good day.